Friends, welcome to social science class. Today we are going to discuss power and functions of Supreme Court. What are the powers given to Supreme Court by the Constitution? There are different type of jurisdiction or the powers. Firstly, original, second, appellate, third, advisory, fourth, supervisory, and fifth, court of record, then protector of fundamental rights, guardian of our constitution, and power of judicial review. These are the main powers. Okay, so these are the main powers and functions. और इसमें jurisdiction 4 टाइप की है, ओरिजिनल, अपेलेट, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी. एज द नेम शोज, ओरिजिनल मीन्स जो बिल्कुल ओरिजिनल है. ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल मीन्स जो रियल है. ठीक है. अपेलेट मीन्स अपील की गई है. एडवाइजरी इट मीन्स कि वो एडवाइस कर रही है किसी को. सुपरवाइजरी मीन्स जो कोर्ट है वो दूसरों के वर्क को सुपरवाइज कर रही है. तो दीज आर द 4 मेन पावर्स और jurisdictions. So let's discuss these in detail. First, original jurisdiction. It means the cases originate in Supreme Court or started in Supreme Court. ठीक है. वो केसेस जो स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, किसी और कोर्ट से अपील नहीं की गई वहाँ पर. These cases are started in Supreme Court और originate in Supreme Court. First hearing ही उसकी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है. This type of jurisdiction is called original jurisdiction. Okay. It means they can be heard in Supreme Court for the first time. Clear? Such cases includes dispute between the union government and state government, union government and state government, state government and state government, union government and many states government. So these are the main jurisdiction cases. Okay, let's read now. Original jurisdiction is exercised in cases which originate in Supreme Court. उन केसेस में ओरिजिनल jurisdiction दी जाती है जो स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट में होते हैं. इट मीन्स दे कैन बी हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. देयर फर्स्ट हियरिंग इज इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. दीज केसेस इंक्लूड्स डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट. एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, एक तरफ या तो वन स्टेट है या फिर बहुत सारी स्टेट्स मिलकर, मैनी स्टेट्स मिलकर केस कर रही हैं. यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है तो उनका कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है. दिस टाइप ऑफ केसेस. सेकंड, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट्स, सेम एज बिफोर. नेक्स्ट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में. ठीक है. ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में. क्लियर. सो इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर और पावर कैन कम अंडर दिस कैटेगरी. क्लियर. अगर एक स्टेट या दूसरी स्टेट के साथ प्रॉब्लम है कि वो उन्हें वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जा रही है वो दूसरी स्टेट को प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट हो सकते हैं. एंड
इन केसेस पर जो ज्यूरिसडिक्शन या जो डिसीजन दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज दीज केसेस are started in Supreme Court itself. Clear? Next is appellate jurisdiction. As the name shows, अपील की जा रही है इसमें. किसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं? अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कोई क्वेश्चनिंग कोई डिसीजन लिया गया तो उस पर क्वेश्चनिंग हुई कि दैट डिसीजन इज़ नॉट करेक्ट और उस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की. दैट इज अपेलेट jurisdiction. Okay, appellate jurisdiction is exercised to hear appeals against the decision of High Court and other courts regarding constitutional, civil or criminal cases. Which type of cases these are? Sometimes the case regarding constitution's explanation, constitution की explanation के regarding case हो सकता है. Any case regarding civil और criminal के issues. Okay, जिसमें जो person है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, then he or she can appeal in the Supreme Court against the decision of High Court. Okay, this jurisdiction is applicable to case involving interpretation of constitution. Constitution की interpretation या explanation करनी है. Cases sent by High Court, और वो cases High Court खुद ही भेज देता है कि I am not able to explain these terms, so I will send this case to Supreme Court. Supreme Court will take decision on that particular term. ठीक है, तो this type of cases were sent by High Court in which the interpretation of Constitution required. Okay, criminal cases where High Court changes the decision of lower court. वो क्रिमिनल केसेस जहाँ पर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन चेंज कर दिया एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंस. मे बी जस्ट टेक एग्जाम्पल दैट देयर इज अ पर्सन who was given imprisonment for 10 years or 12 years for killing a person. ठीक है, एक आदमी जिसे 10 या 12 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में यानी कि कैद में डाल दिया जाता है फॉर मर्डर. ठीक है, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, ये गलत डिसीजन था, इस पर्सन को डेथ सेंटेंस होना चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए. एट दैट टाइम फिर से हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, क्योंकि एक जगह उसे इम्प्रिजनमेंट दिया था, डेथ सेंटेंस क्या पनिशमेंट नहीं थी, उसको मारने की पनिशमेंट नहीं थी, बट हाई कोर्ट में उसे मारने की पनिशमेंट दी गई, डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दी. तो अब जिससे वो डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिली है वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि इस डिसीज़न को चेक किया जाए. जब एक कोर्ट ने मुझे रिलैक्स किया था, रिलीफ दिया था पनिशमेंट में, तो हाई कोर्ट ने कैसे डेथ सेंटेंस दिया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करते हैं वो लोग. क्लियर. और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन टेकन अर्लियर. सुप्रीम कोर्ट अपने ही लिए हुए डिसीजंस को दोबारा से चेक भी कर सकती है. ओके, दिस इज द अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन. नेक्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. एडवाइजरी मीन्स the Chief Justice and judges of Supreme Court advised or try to advise President. Okay, any such opinion given by Supreme Court is not binding on the
president. Whenever president felt that there must be suggestion from Supreme Court regarding any issue that is of national interest, then president ask Supreme Court for the suggestions, for recommendations. ठीक है. So judges or chief justice of Supreme Court can give advice to president, but it is not compulsory for the president to follow those advices, okay, or to work according to these advices. It is just on president's wish to work according to that advice or not. Clear? Advisory jurisdiction में कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और मैटर कवर किए जाते हैं जिन पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगता है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगता है. ठीक है. और इन एडवाइस और ओपिनियन को देने के बाद ही कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो वर्क करे. सच ओपिनियन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि वो कोई बंधन नहीं है कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने एडवाइस कर दिया तो ऐसा ही वर्क होगा. नो, इट इज़ जस्ट ऑन द विश ऑफ प्रेसिडेंट. ओके. नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी jurisdiction. It means Supreme Court supervises the function of all the courts below it. High Court, subordinate courts, district courts, सभी कोर्ट के वर्क पर सुपरवाइजरी वर्क करता है, फंक्शन रखता है सुप्रीम कोर्ट. ओके. सुपरवाइज क्या करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग. ठीक है. दे आर टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस और नॉट. दे मस्ट बी